continuing with the sutures from where we left yesterday. Okay, so this is sutures part 2. Okay, so we will be talking about, first of all we'll be talking about Jenkins rule. Okay, Jenkins rules क्या है? तो if we perform laparotomy, this is a surgery known as laparotomy. अगर हम laparotomy perform करते हैं तो this is the incision we have given. Okay, this is the incision we have given. If the length of the incision is x, तो ये जो incision का length है, अगर इसका length x होता है, तो the required suture length should be 4x. So what is the suture length? Suture length we require to give this suture. So that should be 4x. Are you getting the point? अगर आपको suture का आपको incision का length x होता है, this is the incision given for laparotomy. Okay, so this incision length is x. Now we need suture to tie this one. तो suture का length कितना होना चाहिए? How long we will take the suture? There should be 4x. So the ratio of suture length to wound length should be 4:1. So this has come many times in the exam. Please remember it. Okay, MCQ. This is known as Jenkins rule. Now in case of elliptical incision, तो ये elliptical incision है, right? This is elliptical, you can see. ये एक elliptical incision है आपको, ठीक है? तो length to width ratio, देखो इसका width कितना है? अगर the width of the incision incision is x, okay? ये incision का width है x. Then what should be the length of the incision? Length should be 3x. Okay, so this is for elliptical incision to heal without tension. So ताकि वो heal हो जाए without tension. Length to width ratio should be 3:1. This is for elliptical incision. Now skin suturing. How we suture skin? So if thickness of skin is x, so this is the skin. Okay, the thickness of this is the skin. The thickness is x. Then the distance between two sutures should be 2x. So this is one suture we have given. This is one suture we have given. So if the thickness is x, then the distance between two suture, ये एक suture और ये एक suture दिए है, तो ये इन दोनों के बीच distance कितना होगा? 2x. Okay, so the ratio of distance between suture to skin thickness should be 2:1. Okay, this is for skin suturing. So types of knot, we have got first square or reef knot. So I wanted to give you a demo of this, but yesterday क्या हुआ, जो मैंने अपना चार्जर का वायर यूज किया, after using that wire, so it was not working again. Okay, when I was trying to charge my phone, so it was not working again. So somehow or other means I was able to make it work again. So I did not take the risk and I could not get any nice rope to show you this, how to tie this knot. So in another class someday else, when I get the material, the rope which is required, then I will show you how to tie these knots. Okay, तो अभी फिलहाल आप इमेज देख के याद रखो, एज ए इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है. ओके, तो स्क्वायर और रीफ knot, this is known as square or reef knot, consists of two throws. Crossing is done in each throw. तो crossing किया जाता है इसमें, crossing is done. Okay, and it consists of two throws. Because crossing किया जाता है यहाँ पे, crossing is done, that's why it is a secured knot. Okay, very simple to make. Okay, I just don't have the material to show you, otherwise I would have shown you. I'll give a demo of this in some other class. Tomorrow I'll try to get some rope. Okay, usable rope. Then this is surgeon's knot. Okay, consists of two throws, two wraps in first throw. तो यहाँ पे देखो, two wraps, one wrap और ये two wrap. Okay, normally एक बार देते हैं, फिर दो wrap देते हैं. ठीक है, क्रॉसिंग occurs in each throw. तो जब पहले बांधना होता है तब क्रॉसिंग करते हैं. This is also stable. Okay, this is surgeon's knot. This is granny knot. Okay, granny's knot or pseudo square knot. इसको pseudo square knot बोला जाता है. यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होता है, and that's why it is more prone to slip and relatively unstable. Okay, this is granny's knot. Parts of the needle. Okay, so what are the parts of the needle? See, ये needle है, यहाँ पे हम suture लगाते हैं. Here is the suture. This is the swagged end. It is known as the swagged end. यहाँ पे eye होता है, ठीक है, eye होता है, हमने देखा होगा eye होता है suture में, where you insert the thread. Okay, so then this is the body of the needle.
and this is the point. Okay, eye, body, point. So where do we hold the suture? आप लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर when you learn suture, आप जब स्टिच करना सीखते हो तो how do you hold the needle, कैसे करते हैं? It should be junction of 1/3 from the swagged end and 2/3 from the point end. यहाँ से point से 2/3 होना पड़ेगा, ठीक है? 2/3 and 1/3 from the swagged end, यहाँ से 1/3, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप पकड़ोगे इसको, ठीक है? 1/3 from the swagged end and 1/3 or 2/3 from the pointed end. ओके, ये अगर है तो यहाँ से यहाँ पे swagged end है तो यहाँ से आपका 1/3 होगा और यहाँ से आपका 2/3 होगा. आई थिंक कुंबर, हम मैंने आप सबको सिखाया था ना जब आप लोग थर्ड ईयर पे थे? हाँ भैया. हाँ, मैंने ही सिखाया हाँ था ना. हाँ हाँ, तो ये हाँ. यू हैव टू होल्ड फ्रॉम हियर 1/3 होगा और यहाँ से 2/3 होना है, पॉइंट से 2/3 होना है और यहाँ से 1/3 होना है, ठीक है? देन टाइप्स ऑफ नीडल. ओके, तो टाइप्स ऑफ नीडल कैसे होता है? राउंड बॉडी होता है, फिर रिवर्स कटिंग या कटिंग होता है. तो राउंड बॉडी क्या होता है? देखो, टेपर पॉइंट, दिस इज टेपर पॉइंट एंड दिस इज ब्लंट पॉइंट. तो ये देखो ब्लंट है, ठीक है? राउंड है. राउंड बॉडी मतलब ये बॉडी जो है ये राउंड है, ठीक है? ये बॉडी राउंड है. तो दिस इज टेपर पॉइंट. टेपर पॉइंट ये पॉइंटेड है और ये ब्लंट है. तो दिस इज अबाउट राउंड बॉडी. देन रिवर्स कटिंग. रिवर्स कटिंग क्या होता है? ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन. तो देखो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है रिवर्स कटिंग में. तो ये दो होता है, एक पॉइंटेड अपवर्ड्स, दो ट्रायंगल है पॉइंटेड अपवर्ड्स, ठीक है? और रिवर्स कटिंग जो है इट इज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स. ओके, ठीक है? समझ में आया ये टाइप्स ऑफ नीडल एवरीवन? और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यस सर. ओके ओके. तो राउंड बॉडी टाइप्स ऑफ नीडल दो तरह का होता है, राउंड बॉडी और रिवर्स कटिंग. और कटिंग, रिवर्स कटिंग या कटिंग सेम ही है, ठीक है? तो राउंड बॉडी जो होता है दो प्रकार का होता है. द राउंड बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज टेपर पॉइंट एंड वन इज ब्लंट पॉइंट. तो टेपर पॉइंट ये है, देखो जो शार्प है यहाँ पे, ठीक है? और ब्लंट ये देखो यहाँ पे ब्लंट है. राउंड बॉडी क्यों बोलते हैं? इसका बॉडी जो है देखो राउंड है, ये राउंड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राउंड बॉडी. रिवर्स कटिंग और कटिंग, इसमें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, देखो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? तो ये दिस इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो ये पॉइंटेड अपवर्ड्स भी हो सकता है, पॉइंटेड डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है? पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड्स. ओके, राउंड बॉडी नीडल्स. राउंड बॉडी नीडल्स कैसे होता है? दिस आर नॉन ट्रोमेटिक. ओके, तो ये देखो राउंड बॉडी नीडल्स जो होता है, दिस राउंड बॉडी नीडल्स आर नॉन ट्रोमेटिक. ओके, ये बहुत, ये देखो दिस पोर्शन इज वेरी शार्प, तो ये कट करता है, टेयर करता है. यूज फॉर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लैडर और बाउल. ब्लैडर और बाउल, they are delicate structures. Okay, that's why we use round body sutures, round body needles, ठीक है? राउंड बॉडी नीडल्स यूज करते हैं. ओके फाइन. देन कटिंग नीडल्स. कटिंग नीडल्स आर ट्रोमेटिक नीडल्स, ठीक है? कट जाता है. यूज फॉर टफ स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन एंड फेशिया. तो कटिंग नीडल्स कहाँ पे यूज करते हैं हम? स्किन और फेशिया में यूज करते हैं, ठीक है? नाउ सुचरिंग टेक्निक, विल बी टॉकिंग अबाउट द सुचरिंग टेक्निक. तो सबसे पहले है सिंपल इंटरप्टेड सुचर. ओके, तो नीडल इज इंसर्टेड एट राइट एंगल टू द इंसिशन. देखो नीडल को यहाँ पे राइट एंगल टू द इंसिशन में डाला है और राइट एंगल से निकाला भी है, ठीक है? पास थ्रू बोथ एजेस ऑफ वुंड एंड एग्जिट अगेन एट राइट एंगल. ओके, तो यहाँ से डाला, राइट एंगल में डाला और राइट एंगल में निकाला, और निकाल के फिर यहाँ पे आपको नॉट एक टाई कर दिया, ठीक है? फिर से यहाँ पे दिया, एक राइट एंगल से डाला, राइट एंगल से निकाला, फिर नॉट टाई कर दिया. सेम सेम थिंग गोइंग ऑन ऑल दो सूचर्स. ओके, तो ये एक थ्योरी है, इसके बारे में पढ़ना है. इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वुंड इज x, द डिस्टेंस बिटवीन टू सूचर्स विल बी 2x. तो देखो ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने ड्रॉ किया है. तो एज ऑफ द वुंड अगर इसका थिकनेस x है, ठीक है? दिस इज द एज ऑफ द वुंड. ओके, इसका थिकनेस x है, तो दो सूचर के बीच डिस्टेंस कितना होगा? 2x होगा, ठीक है? ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है. और एक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूचर एंड स्किन इंसिशन. तो सूचर और स्किन इंसिशन, ये इंसिशन है, ठीक है? और ये सूचर है, सूचर जहाँ पे टाई किया,
incision is x, then the distance between two sutures should be 2x. अगर इसका distance भी x होता है तो distance should be 2x. Okay, this is simple interrupted suture. Now continuous suture. Continuous suture, first suture is inserted in an identical manner to interrupted. तो ये interrupted की तरह identical manner में क्या करते हैं, 90 डिग्री में पहले डालते हैं और बाद में क्या होता है, rest of the suture are inserted in continuous manner until the far end is reached. एक डाल दिया 90 डिग्री and then it is carried out. ऐसे डालते जाते हैं, ठीक है. So this is your continuous suture. Far end of the suture is secured with Aberdeen knot. Aberdeen knot क्या है? This is a 3-dimensional thing to be shown. आप YouTube में वीडियोस मिल जाएगा, आप देख लेना what is Aberdeen knot. तो continuous suture में हम Aberdeen knot देते हैं. This is an MCQ. Okay, continuous suture में हम Aberdeen knot देते हैं और by trying फिर ये ठीक है. Then mattress suture. Okay, mattress suture क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. Mattress suture is used to provide produce eversion on inversion of or inversion of, ये और होगा तो eversion और inversion. देखो जैसे inversion है अंदर की तरफ है तो इस suture इस wound को ठीक करना है हमको तो हम mattress suture देंगे. या eversion है ऐसे है तो इसको भी ठीक करना है, हम mattress suture देंगे. तो mattress suture दो तरीके का होता है, एक होता है horizontal mattress और एक होता है vertical mattress. ठीक है, तो initial suture made is interrupted suture. ठीक है, needle move horizontally and transverse both edges of wound again. तो देखो ये initial तो दे दिया हमने 90 डिग्री interrupted की तरह, बट उसके बाद क्या होता है, ये horizontally जाता है. ठीक है, फिर यहाँ से जाते हैं, फिर हम tie the knot. ओके, तो ये ऐसे है, horizontally जाता है. ठीक है, तो that's why it is horizontal mattress. ओके, और वर्टिकल में क्या होता है, नीडल मूव्स वर्टिकली. देखो अंदर की तरह चला जाता है. दिस इज नॉट गोइंग लाइक दिस, इज नॉट गोइंग हॉरिजॉन्टली, दिस इज गोइंग वर्टिकली. तो दिस इज नोन एज वर्टिकल मैट्रेस. वर्टिकल मैट्रेस नीडल मूव्स वर्टिकली एंड ट्रेवर्सेस बोथ एजेस ऑफ वुंड अगेन. ओके, तो ये सारा पिक्चर है. देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, दिस इज गोइंग लाइक दिस. दैट्स व्हाई पहले तो 90 डिग्री में डाल दिया, फिर जब डाला इस तरफ से लेके फिर नीचे से डाला. ठीक है, so this is horizontal mattress. Okay, and this is vertical mattress. Okay, ये vertical mattress है. देखो vertically the needle is inserted vertically, फिर निकाल के यहाँ पे tie the knot. Okay, understanding everyone? समझ में आया आपको? Yes. Okay. Then we have got subcuticular suture. तो subcuticular suture में most commonly used suture is monocryl. monocryl use करते हैं हम subcuticular suture में. ठीक है, उसका अलग नाम क्या है, पॉलीग्लाइकेप्रोन. मोनोक्रिल का अलग नाम है पॉलीग्लाइकेप्रोन. ओके फाइन. तो फिर इसका क्या करते हैं, देन स्पेशली यूज्ड इन स्किन वेयर कॉस्मेटिक अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट. तो ये सबक्यूटिकुलर सुचर, देखो ये सबक्यूटिकुलर सुचर है, स्नेक लाइक है. ठीक है, स्नेक लाइक टर्म यूज नहीं किया है बट दिखने में स्नेक जैसा ही है. ठीक है, तो दिस इज सबक्यूटिकुलर सुचरिंग given in skin where aesthetics और cosmetics important है. ठीक है, skin edges should be approximated. तो ये skin edge को approximate एक साथ जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, then this is purse string suture. okay, continuous stitch parallel to the edge of circular wound. ये wound circular है तो continuous stitch, continuously हम stitch देते हैं यहाँ पे. ठीक है, parallel to the edge, ये edge है, एज का पैरेलल में हम सुचर देते हैं टू द सर्कुलर वुंड. दिस इज नोन एज पर्स स्ट्रिंग सुचर. ये कहाँ पे यूज होता है, हर्निया सर्जरी में और एपेंडेक्टोमी में. ठीक है, देन दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. वेरी शॉर्ट क्लास. ये उस दिन भी मैंने बोला था, लास्ट क्लास आई थिंक यस्टरडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो गाइडलाइंस फॉर डे ऑफ सुचर रिमूवल बाय एरिया. आईलिड और लिप कितने दिन में रिमूव करते हैं, 3 to 4 days में. ठीक है, आईब्रो एंड नोज 3 to 5 days में रिमूव करते हैं. रेस्ट ऑफ द फेस 3 to 4 days में. ठीक है, स्कैल्प 6 to 8 days. ओके, चेस्ट एंड एब्डोमेन 8 to 10 days. ओके, ear and hand 10 to 14 days और बैक एक्सट्रीमिटीज फुट एंड सोल 12 to 14 days में. तो इतना ही है आज के लिए.